الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ادنا ہو کوئی اعلی حبشی ہو کہ قرشی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ادنا ہو کوئی اعلی حبشی ہو یا قرشی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری لا حد کرم آپ سناتا لا حد کرم آپ سناتا تو ہے ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر دور کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے کون اللہ جل اللہ جل اللہ جل جلالہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا اچھا اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستانی ٹھیک ہاسی اتنے نقصان دا مطلب کیا جتا پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں شوال کا مہینہ شروع ہے بلکہ آج اس کا دوسرا جمعہ ہے شوال کے مہینے میں ہمارے پورے ملک پاکستان میں ایک بہت بڑی چیز ہو رہی ہوتی ہے ایک انقلاب آ رہا ہوتا ہے جس سے عام مسلمان پاکستان کے عام شہری کو پتہ نہیں ہوتا پاکستان بھر میں پشاور سے لے کے کراچی تک ہنزہ کی وادیوں سے لے کے کشمیر تک وہاں سے لے کر کے بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں تک میدانی علاقے ہوں پہاڑی علاقے ہوں ملک کے طول و عرض کے اندر جتنے دینی مدارس ہیں ان کے اندر نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے
न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कई सारे ममालिक के अंदर मदारिस दीनिया के अंदर नया तालीमी साल शव्वाल के महीने से शुरू होता है। शव्वाल से शुरू होता है और फिर यहां से चलता चलता रजब में जाकर के उनके सालाना इम्तिहान होते हैं। फिर शाबान में उनको छुट्टियां होती हैं, जब वो रमजान मुबारक की बच्चे तैयारी करते हैं, कुरान मजीद को दौर करते हैं, दोहराते हैं। फिर रमजान मुबारक में वो मुल्क के तौल अर्ज में मसाजिद के अंदर मुसलमानों की कम्युनिटी को कुरान मजीद सुनाने के लिए, दीन की खिदमत के लिए, कुरान मजीद की तालीम के लिए फिर वो पूरे मुल्क में फैल जाते हैं। ये एक जाल है, ये एक पूरी कड़ी है। मदारिस क्या है, क्यों है, इनकी जरूरत क्या है, इनकी अहमियत क्या है, इनकी तारीख क्या है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, आम शख्स को इसका पता नहीं होता। आम शख्स ये समझता है कि मदरसा, उसके अंदर गरीब फकीर का बच्चा आएगा, मिस्कीन आएगा, मदरसे से कुछ लोग निकलेंगे, वो मसाजिद में जाकर के, आम लोगों के पास जाकर के, उनकी दुकानों फैक्ट्रियों में जाकर के चंदा मांगेंगे, अल्लाह के नाम में उनसे पैसा लेंगे और फिर आएंगे, सफेद चिट्टे धोते हुए कपड़े पहनेंगे और किसी मस्जिद में जाकर के कहीं नमाज पढ़ाना शुरू कर देंगे। बस उसके ज़हन में ये क्या है, तस्वीर है। होता ऐसे ही है, होता ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर एक रूह छुपी हुई है। वो रूह सिर्फ इस मुआशरे की जिंदगी नहीं है, वो कुरान सुन्नत की रूह है। इसलिए ये पूरी चेन को समझना जरूरी है। ये झोंपड़े नहीं है, ये झोंपड़े नहीं, ये ईवान है सदाकत के। ये झोंपड़े नहीं, ये ईवान है सदाकत से, सदाकत के, जहां से कैसरो किसरा के ईवान हिलाए जाते हैं। ये एक शेर के अंदर मदारिस की पूरी तारीख मौजूद है। मदारिस ये मदरसा की जमा है। मदरसा ये दरस से निकला है। कहते हैं जी फलाना शख्स, फलाना बच्चा दरस में गया है। दरस कहते हैं पढ़ने को, सबक को। मदरसा कहते हैं जिस जगह पे दर्स होता है, पढ़ाई की जगह को क्या कहते हैं, मदरसा। जैसे स्कूल होता है, ये अंग्रेजी का लफ्ज है, तो वो भी एक तरह का क्या होता है, मदरसा होता है। लेकिन जो दीनी मदरसा है, जब आप ये समझेंगे कि तो आपको पता चलेगा कि मदरसा और स्कूल में फर्क बड़ा होता है। लफ्ज करीब करीब है, काम भी वही होता है, लेकिन दोनों के अंदर जमीन और आसमान का क्या होता है, फर्क होता है। मदरसा उस जगह को कहते हैं जहां पर पढ़ाई होती है, जहां पे दर्स होता है। जैसे दरसगाह का लफ्ज बोला जाता है, दर्स की जगह, गाह कहते हैं जगह को, तो मदरसा कहते हैं पढ़ाई की जगह को। मदरसा पढ़ाई की जगह तो होता है, लेकिन इसके लिए किसी बिल्डिंग का होना, आलीशान दरो दीवार का होना, पुरशिको इमारत और मीनारों का होना, यह जरूरी नहीं होता। जो आज के आपको जदीद मदारिस नजर आ रहे हैं, इनके पीछे एक पूरी तारीख है जिसको समझना जरूरी है। मदरसे की तारीख से पहले मैं आपके सामने मदरसे के मकासिद रखना चाहूंगा। मदरसे के 3 बड़े मकासिद होते हैं। मदरसे का सबसे पहला मकसद यह होता है कुरान सुन्नत, दीनी तालीमात, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सीखना, सिखाना और उनको आगे फैलाना। इस पूरे दीनी जखीरे का तहफ़्फ़ुज़ ये मदरसे का बुनियादी मकसद होता है। मदरसे का दूसरा मकसद मुआशरे के अंदर सालिहपन का, सुलहा का, अमन का, अमान का, नेकी का फैलाना और इसको फिर आगे अगली नस्लों तक पहुंचाना। गोया कि मुसलमानों की अगली नस्ल के दीनदारी का, उनके ईमान का जामिन एक मदरसा होता है। आप इमेजिन कर लें कि आज पाकिस्तान से या दुनिया भर से आप मदारिस को खत्म कर दीजिए, बैन कर दें, सारे मदारिस बंद हो जाएं। इमेजिन कीजिए अगले 15 से 20 साल में जैसे ही आपकी अगली नस्ल तैयार होकर आपके सामने खड़ी होगी, ना उनको निकाह का पता होगा, ना उनको जनाजे का पता होगा, ना उनको कलीमा आता होगा। वो खिंजीर खाएंगे, शराब पिएंगे, दीन की बड़े छोटे की अहमियत, अदब, तमीज, इस्लामिक मोरल्स, इस्लामिक एथिक्स,
अखलाकियात, इस्लामी कल्चर, तहजीब व तमद्दुन, किसी चीज का भी उनको पता नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नहीं पता तो कभी ये मशरकी जो रियासतें हैं, मशरकी एशिया की रियासतें हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, जो रशिया से आजाद हुई, कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 50 साल 100 साल पीछे चले जाइए, यही वो दरसगाहें हैं, यही वो जगह हैं, यही वो ममालिक है, यही वो गलियां हैं जहां से इमाम बुखारी रहमुल्लाह जैसा अजीम मुहद्दिस पैदा हुआ, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद सजस्तानी, गजाली, राजी, बड़े बड़े साइंसदान, सियासतदान, फुकहा, दीन के बड़े बड़े अमीन, वो इन्हीं जगहों से पैदा हो रहे थे। क्या किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ दीन की नशर व इशाअत पर पाबंदी लगाई, बस। भाई हर एक का इंडिविजुअल मसला है, इनफरादी मजहब है, हर शख्स का मर्जी है, कोई दीन सीखे, कोई मजहब सीखे ना सीखे, हर बंदे की अपनी मर्जी है, मजहब इनफरादी मामला है। सिर्फ ये सोच लोगों को दी, मदारिस और मसाजिद से लोग कटे। आज जाके देख ले वहां पे क्या है, वही मसाजिद है, वही मदारिस है, अस्तबल है, घोड़ों की रेस होती है, शराब खाने हैं, रक्स गांव में, वो सारी की सारी चीजें तब्दील हो चुकी। दीनी मदारिस का दूसरा सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों की नस्लों के ईमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उनको कलिमा ला इलाह पर खड़ा करना है। ऐसी माएँ तैयार करनी है जो अपनी गोद से अपने बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह की लोरी भी उनको साथ सुनाती हैं, उनको साथ अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ करवाती हैं, अल्लाह की तौहीद का नगमा भी सुनाती हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी उनके दिलों में डालती हैं। ये मदारिस की बरक़ात है। तीसरा सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों की दीनी खिदमत करना, ऐसे अफराद तैयार करना जो मुसलमानों की समाजी और सियासी खिदमत कर सके। सियासी का लफ्ज़ मैं डेलिबरेटली बोल रहा हूं क्योंकि जदीद जमाने में लोग सियासत को गन, करप्शन और जितनी मुआशरे की बुराई है उसके साथ जोड़ते हैं, हालांकि सियासत इसको नहीं कहते। अपने मुल्क के अंदर जो सियासत है उसके तसव्वुर से जरा बाहर आइए। मैं आपके सामने एक नजरिया रखना चाहता हूं जिसको कहते हैं सियासत मदनिया। हदीस पाक के अंदर आता है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनु इसराइल के अंदर सियासत अल्लाह के नबी किया करते थे। सियासत कहते हैं लोगों की खैर खाही, लोगों के अंदर ऐसी तब्दीलियां लेकर के आना कि लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे के लिए जज्बा ईसार रखें। ऐसे अफराद को तैयार करना जो मुआशरे के लीडर बने, जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फलसफे और नजरिए के ऊपर खड़े हों। दीन इस्लाम ऐसे लोगों को तैयार करता है जो मुसलमानों के मुआशरे की सियासी रहनुमाई करते हैं, मुसलमानों के नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, मुसलमानों को समाजी तौर पर खड़ा करते हैं, उनको वो अखलाकियात सिखाते हैं। अभी रमजान मुबारक गुजरा है, कभी आपने देखा हो कि किसी मस्जिद में मौलाना साहब की जरूरत है, किसी मुअल्लिम की जरूरत है, इमाम की जरूरत है, खतीब की जरूरत है, कभी मौलवी कम पड़े हो, कभी मौलवी कम पड़े हो। अभी 1-2 साल पहले की बात है, आपकी सोसाइटी में एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब की जरूरत थी। मैं खुद उस इंटरव्यू पैनल का हिस्सा था। अब यकीन माने कि सैकड़ों दरखास्तें सिर्फ एक सीट के लिए आई हुई थी। अंदाजा करो मौलवी कितने सारे ने? मौलवी बहुत ज्यादा है। किस वजह से? ये दीनी मदारिस की खिदमत है, कभी कम नहीं पड़ेंगे। कभी आपने मौलवियों को देखा हो चौक बंद किया हो, हड़ताल कर दी हो, शराइ कायदे आजम ब्लॉक किया हो, कभी माल लोड पे एहतजाज को निकले हो। हमारी तनख्वाहें थोड़ी है, हमारी तनख्वाहें थोड़ी है, हमारे पास गाड़ियों का पेट्रोल नहीं है, हम बच्चों को कहां से खिलाएं, हमारे बच्चों की फीसें पूरी नहीं हो रही। कभी मौलवियों ने हड़ताल की हो? आपने जजों की हड़ताल देखी होगी, आपने ब्यूरोक्रेट्स की हड़ताल देखी होगी, आपने पुलिस ऑफिसर्स की भी हड़ताल देखी होगी, सारी हड़तालें आपने देखी होंगी। कभी मौलवियों ने हड़ताल की हो कि नहीं जी हमने नमाजें नहीं पढ़ानी, सब लोग अपनी अपनी नमाजें पढ़ाएंगे, हमारी डिसरिस्पेक्ट होती है, मसाजिद को बंद करो, लोगों की अपनी मर्जी, घरों में पढ़ाएंगे अपनी नमाज। कभी आपने देखा हो? ऐसा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि दीनी मदारिस के अंदर तरबियत का अंदाज ही कुछ और होता है। वहां पे लोगों को, बच्चों को यह सिखाया जाता है कि तुमने लोगों का रहबर और रहनुमा बनना है, तुम क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के अमीन हो, तुमने मोहब्बत रसूल का लोगों को दर्स देना है, तुमने दीन इस्लाम की अखलाकी बुनियादों पर मुआशरे को खड़ा करना है। उनके यहां छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं होता, उनके यहां हड़ताल का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये 3 बुनियादी मकासद हैं मदारिस के।
मदारिस का नज़म क्या होता है, इससे अगली बात। मदारिस का नज़म ये होता है, एक शख्स अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने आप को वक्फ करता है, मुसलमानों की कम्युनिटी में से उठता है और वो कोई जगह वक्फ की एक अलामती तौर पर उसका जिम्मेदार होता है, और फिर वहां पर वो मुसलमानों के बच्चों की तालीम शुरू करते हैं। वहां पे असातिज़ा होते हैं कि जो कि आला मायार का तकवा उनके अंदर होता है, कुतुब के वो हाफिज होते हैं, कुरान मजीद को उन्होंने अपने सीने के अंदर सजाया होता है, वो मुसलमानों के बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। उनमें फुकरा बच्चे भी होते हैं, उनमें मालदारों के बच्चे भी होते हैं, मुआशरे के हर तबके का बच्चा वहां पर शामिल होता है। और सबसे अहम बात यह है कि मदारिस के अंदर होता क्या है, मुसलमानों से माल लिया जाता है, मुसलमानों के बच्चे लिए जाते हैं, उन्हीं के बच्चे उन्हीं का माल, बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करके फिर उनको वापस कर दिया जाता है। अब उसी घर के अंदर एक बच्चा दीनी तालीम रखता है, एक बच्चे को आपने ब्यूरोक्रेट बनाया है, एक बच्चे को आपने वकील बनाया है, एक बच्चे को आपने सियासतदान बनाया है, एक बच्चे को आपने दुनिया का कोई और फन सिखाया है। एक ही बाप है, उसके 4-5 बेटे हैं जो कि मुख्तलिफ फनों के साथ वाबस्ता है, लेकिन अब्बा जी क्या करते हैं, अब्बा जी को जब खिदमत की जरूरत होती है तो वो कहते हैं एक बेटा मेरा लंदन में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक फला जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो एक मदरसे में दाखिल कराया था ना वो मेरी खिदमत करते हैं। वो क्या करते हैं? खिदमत करते हैं। मेरे दोस्तों, ये दीनी मदारिस हैं, ये इनकी कंट्रीब्यूशन है, ये इनकी खिदमत हैं, ये इनका नज्म है। मुआशरे को नजरियाती बुनियादों पर खड़ा करने पर सबसे बड़ा जो किरदार है वो किसका है? दीनी मदरसों का है। दीनी मदरसे की तारीख आप देखें, दीनी मदारिस की तारीख उस वक्त से शुरू होती है कि जब गारे हिरा में सरवरे कौनैन सैयदुल मुरसलीन खातमुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन गारे हिरा के अंदर है। गारे हिरा सबसे पहला मदरसा है जहां पे सबसे पहले स्टूडेंट जनाब रहमतुल लिल आलमीन है, और सबसे पहले ज़रिया तालीम जनाब जिब्राइल सलाम है, और सबसे पहला मुअल्लिम खुद खुदा है, और सबसे पहला निसाब तालीम इंसानियत है, तकरीम इंसानियत है, तख्लीक इंसानी की अहमियत है। सबसे पहला दर्स, सबसे पहला निसाब, सबसे पहली किताब, उसके अंदर इल्म और कलम को सबसे पहले सिखाया गया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। सबसे पहली तालीम के अंदर इंसान को उसके रब की मारिफत सिखाई गई है कि अपने खालिक को पहचान। और जदीद जमाने के जो मदरसे हैं वो उसी रवायत के अमीन हैं, उनकी शमा वहां से चल रही है जो आज तक जल रही है और इस्लामी मुआशरे को रोशन कर रही है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जिसकी बुनियादें इतनी मजबूत हो, गारे हिरा से वो शमा निकलती है, मदीना मुनव्वरा पहुंचती है, मस्जिद नबवी आबाद होती है। अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी नमाज की जगह है, वहां पर एक चबूतरा कायम करते हैं जो मस्जिद नबवी की सरफेस से थोड़ा बुलंद है। वहां पे अहले इल्म सहाबा इकराम जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से कुरान सीखते हैं, दीन सीखते हैं, फिक्र सीखते हैं, हदीस सीखते हैं, उनके लिए अल्लाह के नबी ने थोड़ी सी बुलंद जगह बनाई है ताकि लोगों के सामने ये नुमाया हो सके कि लोगों अहले इल्म की कदर करना तुम में से हर एक की जिम्मेदारी है। वहां पर सुफ़ा का निजाम क्या था? सुफ़ा के निजाम में यह था कि जो मुसलमान होता है वो दो हाल से खाली नहीं होता, या तो वो दीन सीखने और सिखाने के साथ वाबस्ता होता है, या फिर वो अपने मुआशरे में जाता है, मुआश कमाता है और दीन सीखने सिखाने वालों की खिदमत करता है। मदीना की कम्युनिटी में भी दो तरह के लोग थे। कुछ वो लोग थे कि जिनका दीनी ज़ौक़ था, जिनका हिफ्ज़ अच्छा था, उन्होंने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक्फ किया हुआ था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का घर सबसे पहला मदरसा था, वो रहते हुजूर के पास थे, हर वक्त अपने इल्म की तशनीगी को हुजूर की ज़ियारत से सैराब किया करते थे, हुजूर से कुरान सीखते थे, हुजूर का फरमान सीखते थे। और मुसलमानों की कम्युनिटी के वो लोग जो मुआशरे में जाते थे, कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, तिजारत करते थे, मुलाजमत करते थे, मजदूरी करते थे, वो क्या करते थे कि अपने बच्चों को भी पालते थे, उसके साथ साथ अपने माल का एक हिस्सा उन्होंने उन लोगों के लिए वक्फ कर रखा था
جو मुसलमानों के लिए दीन को सीखा करते थे। इस तरह से मदरसा सबसे पहला जो कायम हुआ, जिसको सुफ़ा कहते हैं, उसका निजाम ऐसे चला करता था। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि तज़किये के दो तरीके हैं। तज़किये के दो तरीके हैं। पहला तज़किया है तालीम के साथ, दूसरा तज़किया है इन्फाक, माल को खर्च करने के साथ। कुरान मजीद से पढ़ रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आले इमरान में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, हमने जो रसूल भेजा है उसकी ड्यूटियां ये है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वो किताब भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है, व युज़क्कीहिम, तुम्हें अंदर से पाक भी करता है। गोया कि ये वाला जो तज़किया है ये उन लोगों का है जो तालीम और हिकमत सीख रहे हैं। आप चले सूरह तौबा के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें फरमाते हैं, मेरे महबूब, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि जो तुम्हारी कम्युनिटी में से जो मालदार हैं आप उनसे माल लें। उनसे क्या लें? माल लें। गोया कि चंदा लेने का हुक्म खुद कौन दे रहा है? खुद कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। महबूब आप इनसे क्या लें? माल लें। जब आप इनसे माल लेंगे, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इनके दिलों को पाक कर दूंगा। गोया कि मालदारों का तज़किया, उनसे माल लेना और कम्युनिटी के मुस्तहिक अफराद के ऊपर क्या करना है? खर्च करना है। जो मदारिस होते हैं ये बेहतरीन मसरफ होते हैं, यहां से दीन इस्लाम की शमा फूटती है। ये दीन इस्लाम का जो दरख्त है, जो पौधा है, उसकी आबियारी करते हैं, और ये अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त, अपना बचपन, अपना लड़कपन, अपनी जवानी, वो सारी की सारी क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के लिए खर्च करते। अगर वो चाहें तो वो भी बाजार में जाएंगे। उनके अंदर भी बड़े आली दिमाग लोग होते हैं, बड़े बड़े ज़हीन होते हैं, उनकी निगोशिएशन स्किल्स बहुत कमाल की होती हैं। वो चाहे तो मदारिस से निकले, बाहर जाए, खरीदारी करें, तिजारत करें, बिजनेस करें, वो कहीं कहीं अच्छा कमा सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को दीन इस्लाम के लिए वक्फ किया हुआ है। मुसलमानों की कम्युनिटी की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को रोक करके रखा हुआ है। तो इसलिए वो मुसलमान कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि मदारिस के नज़म को कामयाबी के साथ चलाने के लिए वो उनके साथ क्या करेंगे? ताअवुन करेंगे उनके साथ, ताकि ये नज़म चलता रहे, और यही नज़म उनके आने वाली नस्लों के ईमान का क्या बनेगा? मुहाफिज बनेगा, उनका जरिया बनेगा। मदारिस की कुर्बानियां कैसी शानदार हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहूंगा। दो सिनेरियो है, दो मंजर हैं। आपने मुअर्रिखीन से, उलमा से ये सुना है कि स्पेन, जो कि यूरोप का एक मुल्क है, उसके ऊपर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। बड़े फख्र से हमारे बच्चों, जवानों को स्कूल के तालीमी निसाब के जरिए से ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों ने स्पेन के ऊपर कितने सौ साल हुकूमत की? 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। कदीम जो इसका नाम है वो था उंदलुस। मुसलमान जब हुकूमत करते थे इसका नाम उंदलुस था, जदीद नाम उसका वो स्पेन है। 800 साल मुसलमानों का निज़ाम था, तालीमी निज़ाम, सियासी निज़ाम, मुआशरती निज़ाम, मईशत का निज़ाम, हर निज़ाम उनका कमाल दर्जे का था। बेहतरीन हॉस्पिटल्स, रिसर्च, तालीमी इदारे, तहकीकी मराकज़, हर एक चीज में वो टॉप लेवल पे थे। मुसलमान वहां पर हुकूमत करते थे। 800 साल तक हुकूमत की मुसलमानों ने। बाद में क्या हुआ? उनके ऊपर ज़वाल आया, आदात तब्दील हुई, इस्लामी नज़म से हटे, इस्लामी तर्ज सियासत उनके अंदर खत्म हुई, करप्शन आई, मोरल करप्शन के अंदर शामिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सजा देते हैं बतौर कौम। उनसे इक़्तिदार छीना, ईसाई गालिब आ गए। मुख्तसर कर रहा हूं, ईसाइयों ने जब गलबा पाया और जब मुसलमानों का बादशाह था वो स्पेन के दारुल हुकूमत के शाही महल के उनको चाबियां दे रहा था, तो उस वक्त वो एक एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत कर रहा था। उसने कहा कि तुम ये स्पेन हमसे ले रहे हो वापस, लेकिन हमें इस बात की यकीन दहानी कराओ कि यहाँ की मसाजिद महफूज रहेंगी, मुसलमान महफूज रहेंगे, तुम उनको इस्लाम से फिरने पर मजबूर नहीं करोगे, इनकी इज्जतें, इनकी इस्मतें, इनकी तालीमी दरसगाहें महफूज रहेंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे से वादा करते हैं कि तुम्हारी ये सारी चीजें क्या रहेंगी? महफूज रहेंगी। जब स्पेन उनके कब्जे में आया तो चंद ही सालों में, चंद ही महीनों में वहां से इस्लाम रुखसत हो गया। इस्लाम क्या हुआ? रुखसत हो गया। उन्होंने अपने वादे की, अपनी एग्रीमेंट की पासदारी नहीं की। ये एक मंजर है। दूसरा मंजर देखें, दूसरा मंजर है हिंदुस्तान। मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की। अंग्रेज आया
اور مسلمانوں سے تخت دلی چھن گیا، مختصر کر رہا ہوں، چھن گیا. یہ کسی ایگریمنٹ کے نتیجے میں ہندوستان ان کے قبضے میں نہیں گیا، بلکہ انہوں نے جنگ کر کے، شکست دے کے سارا کچھ انہوں نے چھینا. یہاں کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب نظام اسلام کا نہیں رہا، ہمارا اسپین والا حال بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر اسلام جو آج باقی ہے اسپین کے اندر باقی نہیں. وہاں کی مساجد تالے ہیں، استبل ہیں، گھوڑ سواریوں کی جگہ ہے، وہاں پہ شرابے اور خنزیر بیچے جاتے ہیں انہی جگہوں پر. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مسلمانوں نے مدارس قائم نہیں کیے، نہیں بچے ان کے مدارس. یہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدارس بنائیں گے، اسلام کی نظریے کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی نئی نسل کو دین سکھائیں گے، قال اللہ وقال رسول پڑھائیں گے. چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے طول و عرض میں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کے بچے ہیں، عالم بھی بنتے ہیں، بڑے بڑے فقیہ موجود ہیں، محدث موجود ہیں، مفسر موجود ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں. وہ کس وجہ سے یہاں پر اسلام کا نظریہ آج بھی قائم ہے. چنانچہ یہ آگے چل کر کے جو آپ کا ملک پاکستان بنا ہے، یہ کن لوگوں نے بنایا ہے، اس کے اندر قربانیاں کن لوگوں کی ہیں؟ آپ شاملی کا میدان کی تاریخ پڑھیے، آپ بالا کوٹ کے پہاڑوں کی تاریخ پڑھیے، آپ پاکستان سمیت ہندوستان کے اندر پانی پت کی جیلیں دیکھیے، وہاں پر جو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں وہ اہل علم نے دی ہیں، علماء فقہاء نے دی ہیں. انگریز یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ جب انگریز نے یہ قبضہ کیا ہے ہندوستان کے اوپر، دلی کے اندر ایک رات میں 400 مدارس کو اس نے ملیا میٹ کیا ہے. انگریز یہ لکھتا ہے کہ اس نے دلی سے پشاور تک کا سفر کیا تو راستے میں کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی داڑھی والے کی، پگڑی والے کی لاش سے لٹکی ہو. یہ مدارس کی قربانیاں ہیں، یہ جھونپڑے نہیں، یہ ایمان ہے صداقت کے. یہ جھونپڑے نہیں، یہ ایمان ہے صداقت سے. یہاں سے کیسر و کسرا کے دیوار ہلائے جاتے ہیں. یہ مدارس کی تاریخ ہے. آپ کے آج کے بڑا بڑا جاگیردار، زمیندار، ایکڑوں مربوں کا مالک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انگریز کے ساتھ وفاداری کر کے، مجاہدین کو پکڑوا کر کے، مخبریاں کر کے، انہوں نے کروڑوں ایکڑوں انہوں نے روپے لیے ان سے، اور انہوں نے زمینیں حاصل کی. اور آج یہ بڑے بڑے سیاستدان اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ مدارس کی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں. میرے دوستو، عام مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدرسہ کیا ہے، اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، کتنی شاندار ہے. مسلمانوں کے نظریے کے امین ہے. پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے اوپر، اور اسی پیغام کو، اسی نظریے کو پھیلانے والی سب سے بڑی طاقت وہ مدرسہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مدرسہ ہے. مدرسے نے مسلمانوں کو یونٹی اور اتحاد کا ہر زمانے میں درس دیا ہے. آپ کا پاکستان جن بنیادوں پر قائم ہوا ہے، ایمان، اتحاد، تنظیم، یہ درس صرف اور صرف، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. آپ کی یونیورسٹیاں، آپ کے کالجز اربوں روپے کا پیسہ لے کر کے وہ بند رہتے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ گروہ بندیاں ہوتی ہیں، بچے بلوچ، پختون اور مختلف گروہ بندیوں کا شکار ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ ایک مدرسہ دکھا نہیں سکتے پشاور سے کراچی اور بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں تک. یہاں پر مسلمانوں کو اتحاد کی، ہر رنگ، ہر نسل کا بچہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرتا ہے، باہمی شیر و شکر ہوتا ہے. صحابہ اکرام کی تاریخ کی مثالیں آپ کو یہاں ملتی ہیں. وہ کیوں ملتی ہیں؟ آپ کا پشاور سے لے کر کے کراچی تک ہر ایک مدرسے کا آج بھی جو کریکلم ہے وہ اردو کے اندر پڑھایا جاتا ہے. یہ پاکستان کو متحد رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مدارس ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کر رہا ہوں، کن عالمن، مسلمان 4 حال سے خالی نہیں ہوتا. کن عالمن، یا عالم بنو، دین پڑھانے والے بنو، او متعلمن، یا دین سیکھنے والے بنو. تیسری چیز، او خادمن، یا ان پڑھنے پڑھانے والوں کے خادم بنو، ان کے ساتھ تعاون کرو. یا فرمایا او محبن، چوتھا درجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرو، ان سے بغض، ان سے نفرت، ان سے تعصب یہ نہیں کرو. عالم ہوتا ہے، متعلم ہوتا ہے مسلمان، یا خادم ہوتا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. ولا تکن خامسا، 5واں کوئی اور ہوتا ہے. اللہ بڑی سمے نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.